Good morning, students. I am your Farzana ma'am, and we are back with our new lesson. And soon get ready with your book in your hand and open your book to page number. I think it may be your 17 page number, as it's not mentioned on this page. So open your book to page number 17 is with the new lesson, and the name of this lesson we'll read later on. Just see what is there on top before you read. You may know that the dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated the tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. So the lesson name is itself how the dog found himself a new master. Let's begin with the first para. One, that is the paragraphs have been numbered, so it makes easy for you to answer your questions. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself. Turn your book pages. Wandering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. We'll read two paras, okay children? Yes, we'll read this one also. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. Let's go back with the first para. What is this explaining in this for this lesson? कि एक ज़माने में मीन्स एक बार जब डॉग्स रहते थे, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स. तो एक ऐसा भी ज़माना गुजरा है, एक ऐसा भी टाइम गुजरा है कि डॉग्स अपने मास्टर खुद हुआ करते थे और वो वैसे ही रहते थे जैसे वुल्व्स रहा करते हैं. इन फ्रीडम यानी कि पूरी तरह अपने आप में ही रहना, किसी के गुलाम ना बनना, किसी के सर्वेंट ना बनना, अपने ही मास्टर रहना भी बहुत बड़ी बात होती है. Until a dog was born who was ill pleased with this way of life. एक डॉग फिर जब पैदा हुआ और उन्होंने देखा कि उनकी जो ज़िंदगी है बहुत ही अनहैप्पी है. सी ओवर हियर, इल प्लीज्ड मीन्स इट्स एन ओल्ड फैशन इंग्लिश ओवर हियर, ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, यानी कि वो खुश नहीं थे अपनी इस लाइफ से. एक डॉग जो पैदा हुए वो अपनी इस ज़िंदगी से खुश नहीं थे. ही वॉज नॉट हैप्पी. ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ. ये जो खुद ही अपने आप घूमते रहते थे अकेले, इससे वो थक गए थे. टायर्ड मतलब थक जाना, और वॉन्डरिंग अबाउट यानी कि इधर उधर कोई रीज़न नहीं होता है और आप घूमते रहते हो विदाउट योर गोल, सो योर लाइफ इज़ मिजरेबल. आप जब आपकी कोई लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, एम नहीं होता है, तो आप विदाउट एनीथिंग यू जस्ट रोम अबाउट, यू बी सिटेड इन योर हाउस. अगर घर हो तो आपकी भी ज़िंदगी अच्छी नहीं जाएगी. तो वैसी ही ज़िंदगी ये डॉग की जा रही थी. उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में उसको करना क्या है. ओके वो अपने आप ही इधर उधर घूम रहा था. लेट्स सी. वॉन्डरिंग, लुकिंग फॉर फूड, कभी खाना ढूंढना होता था और कभी वो डरा हुआ सहमा हुआ रहता था. ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर दैन ही, और उनसे वो डरता था किससे? जो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉग्स होते थे. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. तो फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम करता हूँ कि मेरे से जो स्ट्रॉन्ग है उनके अंडर में मैं काम करने लग जाऊँ, मैं उनका सर्वेंट बन जाऊँ. ओके कोई भी हो, एनी वन ऑन दी अर्थ, दुनिया में कोई भी मेरे से जो स्ट्रॉन्ग है वो मुझे मिल जाए और मैं उनका सर्वेंट बन जाऊँ. एंड ही सेट आउट, और फिर वो ऐसा मास्टर ढूंढने निकल गए. सेट आउट मतलब ही मूव्ड अवे फ्रॉम हिज एरिया वेयर ही यूज्ड टू लिव टू फाइंड हिज ओन मास्टर. लेट्स रीड फर्दर. He walked
and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I'm looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together. So what happened in this para? वो चलता गया हमारा डॉग जो ढूंढने निकला है अपना खुद का मास्टर, वो बहुत चलना पड़ा उनको, वॉकड एंड वॉकड, इसका मतलब बहुत चलना पड़ा, और आखिर उनको एक किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ मिल ही गया जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत ही फियर्सफुल था, बहुत ही वायलेंट था, जिससे कोई भी डर जाए, देखते ही डर जाए, दूर से भी दिखे तो डर जाए, फियर्सफुल था. ओके, फ्राइटनिंग इधर लिखा है. सी द मीनिंग ओवर हियर किंग्समैन इज एन ओल्ड फैशन वर्ड, उसके लिए है अ रिलेटिव, एंड फियर्स का क्या मतलब है? वायलेंट, फ्राइटनिंग. ओके, तो जो ज़्यादा ही खूंखार जो बोलते हैं ना, वैसा जानवर उनको मिल गया. ओके, अ बिग वुल्फ ही वांटेड टू फाइंड, आखिर को मिल गया उनको वो वुल्फ जो उनसे ज़्यादा ही फ्राइटनिंग था, एकदम डरावना. ओके, वेयर आर यू गोइंग डॉग? वुल्फ ने पूछा डॉग से. तो डॉग ने क्या जवाब दिया? मैं एक ऐसे उनको मिलना चाहता हूँ, लुकिंग फॉर समवन, ऐसे जानवर से मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ जिसके अंडर में मैं काम कर सकूँ. ओके, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? तो डॉग ने फ़ौरन पूछ लिया वुल्फ से, क्या तुम मेरे मास्टर बनना पसंद करोगे? वुल्फ, आई डोंट सी. तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात दिख ही नहीं रही है कि मैं ना बोलूँ. ओके, वाई नॉट, एंड अग्रीड अपॉन, दोनों ने अग्री हो गए, और अग्री करके दोनों अपनी राह दोनों साथ साथ चलने लगे. वेंट ऑन टुगेदर. Let's read further. 4. They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. What's come over you, master? He asked. What has frightened you so? Can't you see there's a bear out there, and he might eat up both of us, you and me? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cows. I'll kill a cow and then we can both eat our fill. Let's understand this two para. Now उन लोग दोनों साथ चल रहे हैं अभी, और जैसे ही वो आगे बढ़े, काफ़ी चला उन्होंने, जैसे ही वो एक चलते चलते सडनली क्या हुआ, वुल्फ ने नोज़ अपनी उठाई, यानी सूंघने के लिए उठाई. ही लिफ्टेड हिज नोज़, स्निफ्ड, स्निफ्ड मतलब उन्होंने कुछ सूंघा, भापा. ओके, वो लोग नाक से जो होते हैं महसूस करते हैं कि आसपास कोई उनका जानवर शिकार तो नहीं है, उनको शिकार करने वाला. ओके, और एकदम से क्विकली वो भागा, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और अपने जो राह पकड़ी थी उन्होंने चलने की, उस राह पर से वो बहुत तेज़ भागने लगा. और कहाँ पर भाग के गया? बुशेस में, और उसमें जाके डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जो बुशेस थे उसमें चला गया. तो डॉग जो था बहुत सरप्राइज था कि व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर. मास्टर इतना डरावना खुद का ही था, खुद इतने ताकतवर थे वो वुल्फ, डॉग समझते थे उनको. तो उनको ये सरप्राइज़ ही हुआ कि वो एकदम डर के बुशेस में चले गए, डीप डाउन इन द जंगल. ओके, क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट. क्रैप मतलब जब हम छुपते हैं तो अपने आप को थोड़ा दबा लेते हैं, जानवर एकदम दब जाते हैं जब वो डरते हैं,
तो एकदम बॉडी को नीचे ज़मीन पर क्रैप करके वो फॉरेस्ट में और अंदर अंदर भागने लगे। डॉग भी उनके साथ थे और पूछा कि आपका क्या हो गया मास्टर, ऐसे क्यों कर रहे हैं, व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो, आप इतने क्यों डर गए हो, किसने डरा दिया। तो मास्टर ने, जो उनके थे वुल्फ, उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हें दिखा नहीं कि उधर एक बैर है, भालू है, और वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, वो हम दोनों को खा लेगा, तुमको भी और मुझे भी। तो ये जब सुना डॉग ने, सीइंग दैट द बेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, अब डॉग ने क्या डिसाइड किया, वो तो कोई अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को ही ढूंढ रहा था ना, टू बी द सर्वेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द जंगल। तो उनको पहले लगता था कि वुल्फ उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अभी वुल्फ तो भालू से भी, बैर से भी ज़्यादा डर रहे हैं, यानी कि बैर इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। तो उन्होंने क्या सोचा और आगे बढ़ गए, और द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विथ हिम। वो बैर के पास जाके उन्होंने वुल्फ को छोड़ दिया और बैर से पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द बैर अग्रीड टू दिस रेडिली, बैर को बहुत अच्छा लगा, वो खुश होके उन्होंने यस बोल दिया और उन्होंने बोला कि चलो हम अपना खाना शिकार करेंगे। कहाँ पर, फाइंड अ हर्ड, हर्ड में जाएंगे हम, और उधर काउज बहुत सारी होंगी, जहाँ काउज रहती है उस एरिए को हम हर्ड बोलते हैं, जहाँ वो ग्रेज भी करती हैं। और मैं एक काव को मारूंगा, I'll kill a cow and then we can both eat our fill, और हम उतना तक खाएंगे जब तक हमारा पूरा, हम कंटेंटफुल नहीं हो जाते। our fill मतलब फुल्ली कंटेंटेड, फुल्ली हम जब खाना खाते हैं उसका मतलब है our fill, eat our fill. Let's see further. They walked on and soon saw a herd of cows. जब काउज एक साथ चढ़ती हैं, वो पूरे इकट्ठी होके वहाँ पर का पूरा दिन गुजारती भी हैं। अगर उनके कोई मास्टर्स नहीं होते तो वो रहती भी उधर ही हैं हर्ड में, मीन्स बहुत सारी काउज एक साथ जब इकट्ठी होती है उसको हर्ड ऑफ काउज बोलते हैं। बस जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो इधर अब क्या हुआ हमारे स्टोरी में कि जब वो हर्ड ऑफ काउज उनको दिख गया, both were walking, and when they saw the herd of cows, बहुत सारी काउज इकट्ठी ग्रास पे ग्रेस कर रही थी, तो वहाँ पर क्या देखा, जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, वो लोग आगे बढ़ने ही वाले थे काउस के पास, उन लोगों को किसी ने स्टॉप किया। किसने स्टॉप किया? एक बहुत ही खतरनाक आवाज़, टेरिबल नॉइज़ जो थी, बहुत ही बुरी आवाज़ थी, ज़ोरदार जो आवाज़ होती है। और काउज़ क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत ज़ोर से आवाज़ें करके और इधर उधर भागने लगे। द काउज़ वर मूविंग लाउडली, आवाज़ें निकाल रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और इधर उधर डर के मारे इधर उधर पैनिक होके इधर उधर भाग रहे थे। ओके, रनिंग इन पैनिक, पैनिक मतलब घबराहट में जब हम कुछ सूझता नहीं है, हम इधर उधर कुछ भागने लगते हैं पैनिक में, यानी कि घबराहट में, तो वो लोग वैसे ही भाग रही थी। बैर ने पीछे पलट के देखा, उनको क्या दिखा वो तो नहीं बताया, वो भी पीछे पलट के जैसे ही देखा, वो भी एकदम झटके में डीप इनटू द फॉरेस्ट भाग गए, अपने आप को छुपाने के लिए वो भी भाग गए। ओके, लेट्स सी फर्दर। ओके, आई होप वी विल स्टॉप टिल हियर. It will be too much for you to understand. Enough till here, and I'll begin my reading from the page number 20 next video. Till then, you are going to read the lesson, children. You are going to underline the words or the paragraph if you have not understood. I'll get back to you soon with my next lecture of the same lesson, children. Okay, children, keep reading your lessons because this will
help you in understanding the story once or twice, thrice. Read it as many times as you get time.